इंटरनेट की दुनिया में वायरल हुई इंदौर की सब्जी वाली डॉक्टर रईसा अंसारी का अंग्रेजी में गुस्सा जाहिर करना अब इंदौर नगर निगम को भी डरा रहा है। एमपी न्यूज को खुद डॉक्टर रईसा अंसारी ने बताया कि कैसे वो साइंटिस्ट बनते बनते बन गई सब्जी व फल वाली। देखिए एमपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। Hello audience, today we have a special guest in our studio office and we have Dr. Raisa Ansari. She is only a vegetable seller, not only a vegetable seller but she has a great knowledge and great power of English language. Right now Raisa is with us and we will start a short interaction and we are trying to explore some of the questions and regarding her anger and regarding the unlocked situation. सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रईसा, वेलकम। और इतनी अच्छी अंग्रेज़ी कि जब हम अंग्रेज़ी कहें तो हमारे पसीने छूट जाएं, कहाँ से सीखी आपने? देखिए दिस माय अंग्रेजी बिकॉज ऑफ माय कस्टमर्स। इन माय चाइल्डहुड देयर आर सम वॉर्ड बॉय एंड नर्स, दे कम ऑन माय शॉप्स purchasing grapes, pomegranates, etc. That time they all are from Kerala. Usually they were talking in Malayalam and English. That time they were using English ना, तो I was thinking that कि मैं नहीं बोल सकती हूँ, I can't speak English. तो I asked the questions them कि how can I speak English? So that time they provided me some books. Still I am having all the books with me because that time in the period of my PhD, books are my best friends, full moon and sea. These three things are my best friend, समुद्र, books और पूरा चांद, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। Do you know your viral video becomes a blast and you have 1 million views on your video, viral video? And what exactly the situation is doing is holding in the सब्जी मार्केट and कैसा फील हुआ और कैसा एक्सपीरियंस हुआ जब फीडबैक आप तक पहुंच रहा है? देखिए फीडबैक इज़ वेरी गुड, ऑल द पीपल्स आर हैप्पी विद मी, बट द रियल सिचुएशन इज दैट कि माई एंगर इज द रियल एंड राइट बिकॉज वी आर सफरिंग, सन बर्निंग, रनिंग इन loaded cart. That is very difficult for all the persons, vegetables person, fruit persons. All the things are very difficult. Run away from one place to another place, na, this is very difficult. There are some persons which are habitual to drink sharab, daru, alcohol. They usually full times, but this is difficult to run away from one place to another place. And the talking about the old women and talking about the young men and children, they can't run away because behind the one car there are running 6 Indore Municipal Corporation's jeeps. The yellow jeeps. Yellow jeeps and the sitting persons just crowded. Go away from here, run away from here. That is okay. We are going away from here, we are running from here. That is okay. We are running this situation from 2 months. That is okay. Someday all the problems will comes out, goes out. That is, we are waiting for the one day. That is okay. One day I sold my all fruits, mango fruits, and after that just I am taking the tea with biscuits. That time yellow jeeps came and Kondwala Vibhag, who caught the cows, animals, etc. So one person was sitting there and told me that, ए जाएगी नहीं यहाँ से, यहीं बैठी रहेगी, कभी सुनती नहीं है, अनसुनी करती है। तो विद एंगर स्माइल मैंने अपना भी टाइम आएगा, आज तुम जाओ, हमें चाय पीने दो, मन में बोला। नेक्स्ट डे आई वॉज रनिंग देयर फ्रॉम कि Indore Municipal Corporation GB is coming there. He will cut the fine of 100 rupees. Go away from here. I am ready to go away there, and I already done all the things ki go away from here. He stopped me at a particular distance. Stop your hand cart. Stop.
Then told me that कि I will cut your fine receipt. मैंने why? Okay, you can cut it, but you have to pay. आप पे करोगे, मैं नहीं करूँगी. क्यों? क्योंकि मैंने 100 रुपये का भी तो काम नहीं किया है, मैं कहाँ से लाऊंगी. आपको जितने रसीदें काटना है काटिए, लेकिन पे आप करेंगे. तो बोलते मैं क्यों पे करूँगा. तो मैंने कहा आपको दुख है, हम गरीबों को दुख नहीं है कि हम 100 रुपये कहाँ से लाएंगे. सेम सिचुएशंस विद ऑल द पर्सन्स. One vegetables person is coming and mass is just like that, then pay for 100 rupees. Sometimes because the mass is just like that. He paid 100 rupees for this situation. Or this condition is in front of my eyes. That time I against all of them. Why you are paying 100 rupees? That time I angered all the peoples of my mandi. कि why you are paying? No pay, no run away from here, stay. What will happen, we will see. Don't go away from here. But nobody is ready. All the people's fear and just running from one place to another place and another place to one place. सो दिस इज़ द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ डॉक्टर रईसा अंसारी. मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदी में बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे से इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि डॉक्टर रईसा अंसारी की अंग्रेज़ी पर पकड़ इतनी बेहतर है कि जितनी वो अच्छी उर्दू और हिंदी की जानकार हैं, उससे ज़्यादा वो अंग्रेज़ी की भी जानकार कही जा रही हैं. ये वेजिटेबल सेलर ज़रूर हैं, फ्रूट सेलर ज़रूर हैं, लेकिन अब इंटरनेट की दुनिया ने इन्हें जो है पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया है, पेश किया है. आपको बता दें कि रईसा की ज़िंदगी में उनके जो माता पिता हैं वही उनके आदर्श हैं, उनके आइडियल हैं, और यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ये वो पंच लाइन है जो कि रईसा अंसारी को बहुत हद तक प्रभावित भी करती है. वो ज़रूर सब्जी बेचती हैं, ज़रूर फ्रूट यहाँ पर फल बेचती हैं, लेकिन सब्जी मंडी में संघर्ष की उनकी जो दास्तां है या उनका जो अंग्रेज़ी गुस्सा है वो लगातार वायरल हो रहा है. रईसा जी, बहुत सारी अंग्रेज़ी में बात कर ली, अब ज़रा हमारी राष्ट्रभाषा में कुछ बातचीत कर लेते हैं. बिल्कुल, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें बोलना भी चाहिए, और मैं तो कहती हूँ हर जगह इसको यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि भावनाएं हिंदी में होती है, अंग्रेजी में तो सिर्फ वर्ड्स होते हैं. क्या बात है. चलिए रईसा जी, अब भावनाओं में थोड़ा डूबने की बात करते हैं. और मुझे ऐसा लगता है एमपी न्यूज़ के दर्शक और लाखों लाख देश दुनिया के जानी मानी हस्तियां इस वक्त अगर आपको देख सुन रही हैं तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगी. आपकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा आखिर क्या है. मुझे जहाँ तक मालूम है कि आपने MSc भी किया है, PhD भी आप कंप्लीट कर चुकी है मटेरियल साइंस में. आखिर क्या वो मजबूरी है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी आपका सब्जी मंडी से लगाव है कि ख़त्म नहीं होता, और ये संघर्ष आखिर क्यों आप कर रही हैं? सब्जी क्यों बेच रही हैं, फल क्यों बेच रही हैं? देखिए, सब्ज़ी और फल तो हमारे घर में बचपन से बिकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि मेरी पैदाइश भी फल और सब्ज़ी के बीच में हुई. अब रहा मेरा फल बेचने का, तो मैंने 2017 तक श्री अरविंदो इंजीनियरिंग कॉलेज में 2015 तक जॉब किया. उसके बाद 2 साल मैंने ओरिएंटल यूनिवर्सिटी कंटिन्यू किया, लेकिन माय गोल्डन कॉलेज इज़ श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज. आई लव दैट कॉलेज and really I love all the people which are working there. All they are very good, and the students are very good. कल का एक मोमेंट बताती हूँ. In 2009 I was there in Shri Aurobindo Institute of Engineering College, and I was taking the branch of electrical engineering, and one student is there, Dhirendra Kumar. Yesterday he came on my shop and told me that, ma'am, मैंने देखा कि भाई ये कौन है. उसने दाढ़ी रख लिया था, उसका बियर्ड था. मैंने, बेटा मैंने पहचाना नहीं है, लेकिन हाँ तू मेरा स्टूडेंट है, मुझे ये पता है. मैडम मैं धीरेन्द्र इलेक्ट्रिकल ब्रांच से 2009 बैच. मैंने कहा हाँ बेटा पहचान लिया. तो वन स्टेटमेंट इज माई इन द इंटरव्यू इज दैट कि ड्यू टू द फिनेंशियल कंडीशंस एंड फैमिली प्रॉब्लम्स आई वॉज सेलिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो माई स्टूडेंट्स वॉज थिंकिंग दैट कि मैम इज़ इन प्रॉब्लम. तो सडन he told me that, ma'am please give me your account number. I shocked and I was thinking that कि in place of my student, if supposed to be I am married, that time my son was there na, he never asked to me कि give me your account number. लेकिन he is my student and asking about my account number. इट मीन्स कि वो सोच रहा है कि मैडम कितनी परेशानी में है.
उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तो खुश थी कि मेरा बच्चा मुझसे मिलने आया, मेरा कॉलेज का इतना पुराना स्टूडेंट मुझसे मिलने आया ढूंढता हुआ। लेकिन उसकी जो सोच थी कि मेरी मैडम परेशानी में, प्रॉब्लम्स में है, मुझे मेरी मैडम की मदद करना चाहिए, उस बच्चे की जो भावना और सोच थी, उसको सोच के कल मैं ये सोची, काश मेरे गाइड ने मेरे लिए एक पल सोचा होता कि मैं इस बच्ची का करियर ख़राब करूँगा तो ये बच्ची कहाँ जाएगी। लेकिन फिर मुझे खुशी ये हुई कि वो मुझे इस जगह ना भेजते तो क्या मैं ऐसे स्टूडेंट बना पाती जो SBI में वर्क करते, MPEB में वर्क करते, प्रेस में काम करते, रिपोर्टर्स होते, क्या मैं ऐसे स्टूडेंट्स बना पाती? नो, मुझे लगता है कि आप भी कहीं ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर पाती, लेकिन आज आप सब्जी या फ्रूट के ठेले पर जो है अपना ज़िंदगी बिता रही हैं। आपको नहीं कभी ऐसा लगता? ऐसा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर कभी कभी दिल को भी तो समझाना पड़ता है ना। और दिल को मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ कि निज़ाम जो था वो अनएजुकेटेड राजा था और अंग्रेज जो थे उसके ग़ुलाम थे, उसके अंडर काम करते थे और निज़ाम को सिग्नेचर नहीं आता था। तो अंग्रेज हंसते थे कि निज़ाम को सिग्नेचर नहीं आता है। वज़ीर से निज़ाम ने पूछा एक दिन, ये क्यों हंसते हैं? तो वज़ीर ने कहा, ये लोग कहते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको सिग्नेचर नहीं आता है। तो निज़ाम का जवाब बड़ा अच्छा था, बड़ा ही अच्छा था और मुझे बहुत इंस्पायर करता है। कभी कभी जब मैं डिप्रेशन में जाती हूँ और कभी कभी लोनली फील करती हूँ और मुझे लगता है कि आई एम ऑन द रॉन्ग वे, तब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, तब फिर मुझे निज़ाम की बातें याद आती है। ये जो लकीरें मैंने खींची है इस पे मत हंस, इन लकीरों को देख। आई एम द किंग ऑफ यू एंड यू आर वर्किंग अंडर मी, तो दिस इज़ द बिग डिफरेंस। उनका कहना था कि मेरा हाथों से खींची लकीरों को कागज़ पर मत देख, मेरी किस्मत की लकीर देख कि तू पढ़ा लिखा हो के मेरे अंडर काम करता है। तो वो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है कि पढ़ना लिखना और ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल होना। जगजीत सिंह भी तो यही बोलते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है। हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं हो सकता, हर व्यक्ति टीचर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति मेरी तरह फल भी नहीं बेच सकता है। मैं फल बेचने खड़ी होती हूँ, 10 मिनट में मेरे फल भी बिक जाते हैं। तो हर कला होती है। जब ये मजबूरी नहीं है, ये शौक है आपका, ये कहा जा सकता है। हाँ, इसको आप हॉबी समझ सकते हैं क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ को छोड़ा ही नहीं है। जब मैंने PhD किया था मैं अपने गाइड के साथ थी, बस उतना ही समय मेरा ये काम छूटा है क्योंकि मैं उनके साथ कलकत्ता गई थी और ड्यूरेशन इन माय PhD में भी ये तब भी ये काम करती थी। बस कुछ समय के लिए छूटा है, 1.5 या 2 साल के लिए, बाकी तो मैंने शुरू से यही काम किया है। और माता पिता ने कैसी तालीम दी आपको, इतना पढ़ाया, इतना लिखाया? आमतौर पर मुस्लिम फैमिली में ऐसा देखा गया है कि लड़कियों के लिए पर्दा प्रथा होती है, उन्हें जाने नहीं दिया जाता। कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज बहुत मुश्किल होता है। आपने तो स्कूल भी किया, कॉलेज भी किया, PhD भी कर लिया, आप एसोसिएट प्रोफेसर भी रह ली। तो कितना मुश्किल, कितना आसान था? और ख़ास तौर पर आपके माता पिता आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व रखते हैं, क्या मायने हैं उनके लिए, उनके आपके लिए? देखिए, माय फैमिली इज़ अ गोल्डन फैमिली, रियलिटी गोल्डन फैमिली। 13 अगस्त 2004, हाँ, आई जॉइन टू डॉक्टर रत्नेश गुप्ता फॉर द प्रोजेक्ट। दैट टाइम माय फादर एंड मदर्स केम देयर, फादर एंड मदर केम देयर। उस समय डॉक्टर रत्नेश गुप्ता सर ने ये कहा था कि मैं आपकी बच्ची को बाहर भी भेजूँगा काम के लिए। उस समय मेरे फादर ने कहा था, ये बेटी मेरी आपकी बेटी है, आप जहाँ भी भेजेंगे मुझे आप पे विश्वास है। तो उस समय मेरे फादर के जो ये शब्द थे, तब मैं बहुत आश्चर्य में थी कि मेरे फादर मुस्लिम हैं और मेरे आने जाने को लेके कुछ भी नहीं सोचते हैं, तो मुझे करना क्या है। लेकिन हाँ, मेरे फादर का एक रेस्ट्रिक्शन था, मेरी मदर का एक रेस्ट्रिक्शन था जो मैंने कभी लांघा नहीं। मेरी मदर और मेरे फादर का ये था कि व्हेनेवर वी यू विल थिंकिंग अबाउट दिस शादी, यदि तुम कभी शादी के बारे में सोचते हो तो हम पे सिर्फ इतनी मेहरबानी करना कि वो लड़का मुस्लिम हो। तो मुझे तो किताबों से प्यार था, लड़के से कब प्यार होता मुझे ये नहीं पता था। लेकिन प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये मेरा यंग जनरेशन को मैसेज है, सब बेवकूफ़ी है। अच्छा, बताइए कि क्या हुआ था उस दिन सब्जी मंडी में, क्या वाकया हुआ था? कब पीली जीप आई, कब आपको गुस्सा आया और कब जो है धड़ाधड़ फर्राटेदार अंग्रेज़ी निकल पड़ी? और आपका जो अंग्रेज़ी गुस्सा है, क्या कभी आपने कल्पना की थी कि इतना वायरल होगा इंटरनेट की दुनिया में कि धमाल मचा देगा? देखिए, ऐसा है, जब गुस्सा आता है ना तो इंसान ये नहीं सोचता है कि बोल क्या रहा है। जब उस ऑफिसर्स ने ये बोला ना कि फॉर ए गुड जॉब यू हैव सम डिग्री, दैट टाइम आई टोल्ड हिम दैट कि इफ़ आई ओपन माई डिग्री ना, दैट टाइम यू विल रन अवे फ्रॉम हियर एंड ऑलवेज फॉरगेट दैट कि रन अवे फ्रॉम हियर, रन अवे फ्रॉम हियर। नौकरी डिग्री मांगती है, मैं जानती हूँ, नौकरी प्रयास भी मांगती है, मैं भी जानती हूँ,
लेकिन काश हमें बटरिंग आता तो हम भी किसी पीली जीप में ही घूमते हैं। पीली नहीं तो सफ़ेद में घूमते, सफ़ेद नहीं तो लाल गाड़ी में घूमते। गाड़ी में घूमने का शौक किसको नहीं होता है, हर इंसान को होता है। ये बच्चे जिसके अंडे फोड़े गए हैं वो भी गुस्से से, आज उसको गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया। आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड ऑल द पीपुल्स। मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। देखिए, नॉलेज और क्वालिफिकेशन इंसान को अपने आप ही उस जगह ले जाता है जहाँ वो जाना चाहता है। और ज्ञान कभी पास्ट को नहीं दोहराता है, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखता है। तो चाहने ना चाहने का कोई सवाल नहीं उठता है। मेरे लक लाइन जो है मुझे उस जगह ले जाएंगे जहाँ मेरा ज़रूरत है। अच्छा, जो गुस्सा था आपका जायज़ था, ये माना जाए? नगर निगम की पीली जीप के खिलाफ जो गुस्सा था वो जायज़ था? हाँ, दैट इज़ डेफिनेटली, दैट इज़ 110% राइट था वो। बिकॉज all the handicapped peoples which are running from one place to another place, this is very difficult. Old women and old men, all they are running with their hand cart with a large load. It is very difficult, and without any shadow, without any support, they are standing over there. After that, 6 or 4 yellow jeeps are running behind them. This is very difficult. अनलॉक के बाद ज़िंदगी कितनी कठिन हो गई है। इस कोरोना ने ज़िंदगी बदल कर रख दी, समाज की परिभाषा बदल कर रख दी, सामाजिक दूरियों के साथ जीवन जीना पड़ रहा है और हर व्यक्ति एक दूसरे का मुंह मास्क से ढक रहा है। आपकी ज़िंदगी कितनी बदली, एक फल विक्रेता होने के नाते, एक सब्जी विक्रेता होने के नाते? और जो गुस्सा आपका अंग्रेज़ी गुस्सा वायरल हुआ, अब उसके बाद क्या आपको इंसाफ मिल पाया है? और आगे क्या अभी भी इंसाफ की अब दुहाई लगाती हैं या अब भी आपको इंसाफ की दरकार है? बिल्कुल। देखिए, अभी जो डिसीजन आया है कि दे विल नॉट डिस्टर्ब अस, दैट इज़ गुड एंड आई एम हैप्पी। येस्टरडे आई डिडंट टेक माई डिनर बिकॉज आई वॉज हैप्पी दैट कि ऑल द पीपल्स आर सिटिंग ऑन अ one place and they can sell our vegetables and fruits etc what they are selling. I was very happy, and today when I read in the newspaper that time really I felt very good कि yeah, this decision is very good, but this is the initiation, this is not the final decision. Always we are facing this same problem, run away from here to there and here to there. I want that कि for all the vegetables vendors and fruits vendors, there must be some particular situations, some particular places, and they have their identity card because they don't suffer their problems in the future. मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके पास अपनी एक पर्टिकुलर प्लेस हो, कार्ड्स हो, ताकि वो फ्यूचर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ना भागे और वो अपनी जीवन यापन कर सके। डॉक्टर रईसा जी, एक बात और जाते जाते बता दीजिए। बहुत लंबी बातचीत हुई, बहुत सारे आपने दिल के राज भी यहाँ पर खोले, अपनी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को भी बयां किया। क्या वाकई में ये सब्जी वाली या फ्रूट वाली ही बनना था, या सपना कुछ और था, तमन्ना कुछ बड़ी थी, उड़ान ऊंची उड़नी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मुकाम है, अगली उड़ान अभी बाकी है? आखिर सपना क्या है, क्या करना है? देखिए, मेरा पहला सपना था मुझे साइंटिस्ट बनना है, जो किसी कारण से बन ना सकी, अफसोस है। लेकिन मैं बना तो सकती हूँ ना साइंटिस्ट। अब वो कैसे बनेंगे? मैं कॉलेजेस में पढ़ाती हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी प्लेस पे पोस्टेड भी हैं। मुझे खुशी होती है जब वो मुझे कॉल करते हैं, हर चीज़ बताते हैं। जब भी उनका गवर्नमेंट जॉब लगता है तो मुझे खुशी बताते, रात के 3 बजे भी बताते, मैम मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा नहीं, मेरे बच्चों का तो लगा। तो सेकंड प्रायोरिटी है मेरे पास कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या लेक्चरर का भी जॉब मिलता है तो आई विल डू दैट। And the third priority is my family business. That's it. Life has finished. And regarding the COVID-19, my one message is to that Indian peoples: Corona is not here. Corona is a virus. COVID-19 is a disease. For the precaution is that कि we have to maintain the social distancing, applying the mask on my face, using the sanitizer. That's it. और खुल के खाओ, खुल के जियो। मौत तो सभी को आना है, फिर डर किस बात का?
चलिए, डॉक्टर रईसा अंसारी के चेहरे पर ये जो मुस्कान है, यही इनकी कामयाबी का भी राज है। और इनकी जो अंग्रेजी भाषा पर पकड़ है, उसने जो है नगर निगम की पीली गैंग के भी पसीने छुड़ा दिए। और अब उनका यही अंग्रेजी गुस्सा पूरे देश और दुनिया ने भी देख लिया है। उम्मीद है कि उनके इस गुस्से के पीछे जो एक शख्सियत छुपी थी, उसे जो है हमने आपके सामने लाने की भरसक कोशिशें की हैं। अपने माँ बाप को आदर्श मानती हैं और खुलकर कहती हैं कि कोविड-19 का कहर ज़रूर पूरे देश में इन दिनों देखने को मिल रहा है। कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण का दौर है। ऐसे में खुल के खाएं, खुल के जिएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, मास्क भी जो है अपने चेहरे पर ज़रूर लगाएं। और ज़िंदगी का जो ज़रूरी फ़लसफ़ा है, वो कुछ खुद ब खुद उन्होंने जो है बातों ही बातों में बयां कर दिया। यूँ तो वो एक भारत की एक सफल वैज्ञानिक बनना चाहती थी, लेकिन हालातों ने फिलहाल उन्हें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। उम्मीद है कि डॉक्टर रईसा अंसारी की जो लगनशीलता है, जो मेहनत है और उनके अंदर जो नॉलेज है, वो उन्हें ज़रूर कामयाबी की राह पर ले जाएगा और भारत को डॉक्टर रईसा अंसारी के रूप में आने वाले कल में, भविष्य में एक सफल वैज्ञानिक भी ज़रूर मिल पाएगा। हमने कोशिश की एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपको रूबरू कराने की उस अंग्रेज़ी गुस्सा वाली जो है फ्रूट सेलर से, वेजिटेबल सेलर से। उनके चेहरे की ये मुस्कान कई कहानी को बयां कर जाती है और पीछे छोड़ जाती है कई ऐसे अनछुए सवाल जो कहीं ना कहीं नगर निगम की कार्रवाई को बेपर्दा भी करते हैं और नगर निगम की सख्ती के बावजूद ऐसी हस्तियों को हमसे और आपसे ज़रूर मुखातिब कराते हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।